let us move on to next question. This is a simple one, and I am assuming that many of you will give it a try and will be able to do it also. This is the question. The red colored bead shown in the figure is free to move on a fixed vertical smooth ring of radius r. This white colored thing is a fixed ring of radius capital R fixed in vertical plane. There is a ring like this, right? It is fixed. Now there is a bead which can slide on this ring. Bead means मोती जैसी चीज है जो इस रिंग के ऊपर फिसल सकती है, चल सकती है. एक मोती के जैसी चीज इमेजिन कीजिए, जैसे मोती एक थ्रेड के ऊपर पिरो दो तो चल सकती है, वैसे ये बीड मोती चल सकती है इस वायर के थ्रेड के ऊपर, रिंग के ऊपर. There is no friction, smooth ring. Okay, this bead is given a gentle push at the top. At the top position, the bead is given a gentle push. बहुत धीरे से आपने उसके धकेल दिया, almost zero speed से उसने चलना शुरू किया. At what point on the ring, the acceleration of the bead is vertical? What is the magnitude of this vertical acceleration? At some point during its course of journey, the acceleration of the bead will become vertical. That is what the question is saying. That acceleration of the bead will become vertical at certain point. When is this going to happen? At what point this will happen? और जिस मोमेंट पे बीड का एक्सेलरेशन वर्टिकल होगा उस समय उसका एक्सेलरेशन होगा क्या? वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा सोच लो, जरूर कर लोगे मुझे लगता है. चलो देखो, इस चलते हुए बीड के ऊपर, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो दो ही फोर्स है. जब ये बीड यहां पे कहीं है तो इसके ऊपर दो ही तो फोर्स लग रहे हैं. द टू फोर्सेस आर दिस नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द ring wire on the bead. This normal force could be in this direction, it could be in inward direction also for some part of the journey. आप इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं तो जरा थोड़ा समय देके समझ जरूर लीजिएगा. Anyway, so this normal reaction is being applied by the ring on the bead, and then there is mg. Right, students? Now, as long as we have got these two forces acting on the bead, its acceleration will always be in the direction of resultant of these two forces, isn't it? So, actually this question should read like this: at what points on the ring? Yes, there are many points. On the ring, the acceleration of the bead is vertical. Okay. So, when resultant of these two forces is vertical, then only the acceleration will be vertical. So, one obvious point is this point. Here the normal reaction and mg both are in vertical direction, right? So, just after you push the bead and release it, basically, just after you push the bead and release it, now at this point there is no speed actually. The speed is very small, as the question says. The forces are vertical, but the speed is also negligible. So, in fact, at this point n is equal to mg, there is no force, there is no acceleration actually. But when the bead reaches this bottommost point here, then there is some normal reaction, some mg, and it has got some speed, isn't it? So, the bead is having some speed at this particular point. So, that means this normal reaction is larger than mg, and acceleration of this particle is upward towards the center. So, at this particular point the acceleration is vertical, no doubt. This is one answer. But apart from this, is there any other location where the acceleration is vertical? Can you think of that? I think most of you have got it right. मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने कर लिया होगा. जी हाँ, बीच रास्ते में एक ऐसी जगह आएगी जहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है. देखिए, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कुछ भी है तो एन और एम जी का जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल नहीं हो सकता, और एन और एम जी का रिजल्टेंट अगर वर्टिकल नहीं है
तो फिर एक्सेलरेशन वर्टिकल नहीं हो सकता, इजंट इट? तो इस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस वर्टिकल थे, अच्छी बात है, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों फोर्सेस वर्टिकल तो नहीं है, तो इनका रिजल्टेंट वर्टिकल कैसे होगा? एक ही तरीका है कि नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो जाए तो फिर एक ही फोर्स बचेगा mg, और उस लोकेशन पे बीड का एक्सेलरेशन वर्टिकल होगा और उसका मैग्नीट्यूड g होगा, डाउनवर्ड g होगा, क्योंकि एक ही फोर्स है mg। आपको उसको टेंजेंशियल, रेडियल, फलाना ढिमकाना कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है एक्चुअली कि कितने एंगल के बाद, पोजीशन को हम थीटा के टर्म्स में बता सकते हैं, कहां पर ऐसा होगा पूछा गया, थीटा के टर्म्स में हम आंसर कर सकते हैं। तो हम वो थीटा की वैल्यू पता लगा सकते हैं जहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा कि इसको यहां से जेंटली पुश करके छोड़ दे तो कहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। अगर आप सभी ने किया है ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि cos थीटा 2/3 पे ऐसा होता है। अगर नहीं किया है तो हिंट कर रहा हूं, करके देख लो। सबसे पहले यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, जिससे तुम यहां की स्पीड लिख पाओगे एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। यहां से यहां बीड के आने में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ और वही काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हुआ है। तो जब तुम एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखोगे तो स्पीड लिख पाओगे। स्पीड लिखने के बाद तुम ऐसे पॉइंट की तलाश कर रहे हो, ऐसे थीटा की खोज कर रहे हो जहां नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो हो गया। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो एक ही फोर्स है mg का एक ही कंपोनेंट, ये जो रेडियस के अलॉन्ग है mg cos थीटा, ये mv² के इक्वल है। देखिए ध्यान से देखिए, अभी नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो हुआ है, बीट जो है उस सर्कल में घूम रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ है लेकिन बीट तो सर्कल में ही घूम रहा है। तो mg cos थीटा की वैल्यू mv² के इक्वल है इस पॉइंट पे। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा और एक इक्वेशन एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे तो आपको v थीटा के टर्म्स में मिल जाएगा। उस v को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ये थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इस एंगल पे पहुंच के नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है और यहां पर एक्सेलरेशन वर्टिकल हो जाएगा क्योंकि एक ही तो फोर्स है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।